Hello students, today I am going to brief about the topic which is crystal field theory. After the limitation of valence bond theory, the new theory which arises is crystal field theory. Firstly, I will discuss the assumptions of the crystal field theory. According to this theory, it assumed that the interaction between the metal and ligand is purely electrostatic. That is, the bond form is purely ionic and not covalent or coordinate bond formed during this interaction between metal and the ligand. The second assumption is that it only explains the splitting of only d orbital and does not comment on s and p orbital splitting. And the third assumption is that it gives the exact information of the magnetic moment and it does not tell about hybridization of the orbital. Okay. Now what is crystal field theory? As I discussed earlier, that in crystal field theory there is metal contain d orbital and there is an interaction between the metal and ligand and the interaction will be completely electrostatic, and this theory explains the color and magnetic property of the crystalline solid, hence it is known as crystal field theory. According to this theory, when a metal is coming to the contact with the ligand may be a negative charge particle or a neutral particle. Thus, there is an interaction of the d orbital of the transition metal with the ligand and it produces the crystal field effect. So, this is known as crystal field splitting. Now, before going to in this topic, I will discuss about the tetrahedral complexes, octahedral complexes and square planar complexes. Before going to this topic, पहले हम क्या डिस्कस कर लेते हैं? These are the shape of the d orbital. ये आपने पहले पढ़ी हुई है. But there are mainly 5 d orbitals: dxy, dxz, dyz, dx square minus y square and dz square. These are the shape of the d orbital. dxy की क्या shape होगी? Which lie in the middle of the x and y axis, and this is dxy orbital. dxz orbital lie between the dx orbital x axis and the z axis. Similarly, yz में y और z के बीच में lie करता है. But in case of dx square minus y square, जो x square minus y square orbital form होगी वो क्या होगी? x axis और y axis के ऊपर ही लाई करेगी, लाई ऑन द x and y axis, and in dz orbital, dz square orbital, it lie on the z axis. So these are the shape of the d orbital, and these d orbital are degenerate orbitals. These 5 d orbitals are degenerate. What do you mean by degenerate orbital? The orbital which has the same energy is known as degenerate orbital. Okay. अब degenerate orbital होती हैं, but when the ligand attached to the metal, when it approach to the metal, the degeneracy of the orbital split, and it split into two orbitals, which is T2g orbital and EG orbital. T2g means T को हम याद कर लेंगे ट्रिपलेट से, ट्रिपलेट, एंड EG इज डबलेट. ट्रिपलेट मीन्स, अब देखिए जो 3 ऑर्बिटल हैं एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, वो क्या है? सेंटर में लाई कर रहे हैं. तो ये तीनों क्या होंगी? इनकी सेम एनर्जी हो जाएंगी जब लिगेंड आएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर इनकी सेम एनर्जी हो जाएगी. सो इट स्प्लिट इनटू 2 ऑर्बिटल, T2g ऑर्बिटल एंड EG ऑर्बिटल. ओके. अब क्या होगा? देखो ये यहाँ पर ये लिखा भी है कि when the 5 degenerate orbital will split into 2 group of orbital of different energy, this effect is known as crystal field splitting. This is the definition of crystal field splitting. Now I am going to discuss about the topic which is splitting of d orbital in octahedral complexes. Octa means 6. When 6 ligand approaches the approaches the metal atom. मेटल में क्या होंगी? डी ऑर्बिटल होंगी, और इसको अप्रोच क्या हो रहे हैं? 6 लिगेंड्स. एल जो दिखा रखे हैं ये क्या है? दीज आर द 6 लिगेंड्स, एंड दीज लिगेंड लाई ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. अब एक्स वाई और जेड एक्सिस पे 2 ऑर्बिटल थी. फर्स्ट वन इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड सेकेंड वन इज डी जेड स्क्वायर.
जो लिगेंड आ रहा है और जो मेटल है, दोनों में जब दोनों आपस में एक दूसरे के पास अप्रोच होंगे तो उनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने के कारण dx² - y² और z² ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स Eg ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड T2g ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या होगा, 5d ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू 2 और डिजनरेट और 2 ऑर्बिटल विच इज T2g एंड Eg. Eg orbital contain dx² - y² and z² and T2g orbital contain dxy, dxz and dzx orbitals. Okay. The phenomena of splitting of d orbital in octahedral complexes को अगर हमने शो करना है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। इसमें देखिए Eg ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी है, इंक्रीज होगी है, एंड T2g ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज हो गई है। जो Eg ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हुई है मीन्स हम जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी ज्यादा होती है तो उसे नेगेटिव लेते हैं, इसलिए ये क्या आएगा -0.56 डेल्टा एंड दिस वन इज +0.4 डेल्टा वैल्यू। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद क्या होगा, ये जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। अब इसका कैसे पता चलेगा, अगर लिगेंड का स्मॉलर साइज होगा और क्या होगा उसमें मोर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो लिगेंड क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, और उससे अपोजिट दूसरा लिगेंड क्या कहलाएगा, वीक फील्ड लिगेंड। जैसे ये एक लिगेंड की हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू दे रखी है विच इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा। इन दिस केस कार्बोनिल ग्रुप जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। साइनाइड ग्रुप इज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बट वाटर, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, दीज आर वीक फील्ड लिगेंड्स। और जो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं वो क्या हो सकते हैं, आइदर न्यूट्रल हो सकते हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं। जैसे कार्बोनिल ग्रुप न्यूट्रल है, अमोनिया ग्रुप न्यूट्रल है, वाटर इज न्यूट्रल, बट फ्लोराइड आयन, नाइट्रो आयन, साइनाइड आयन, दीज आर नेगेटिव चार्ज आयंस। ओके, अब उसके बाद में हम और क्या डिस्कस करेंगे। अब जैसे इसमें अब स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का रोल क्या होगा। अब जैसे हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए तो उसके बाद में क्या होगा, अगर मान लो हमारे पास क्या प्रेजेंट हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल लाइक कार्बोनिल, साइनाइड आयन प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे, इनके पास क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जिसके कारण द इलेक्ट्रॉन पेयर अप बिकॉज डेल्टा नॉट इज लार्ज इनफ टू फोर्स पेयरिंग बाय फीलिंग द लोअर एनर्जी T2g d orbital. Thus in the presence of strong field, low spin diamagnetic complex form. ये कैसे होगा कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर ना जाने देके क्या कर देगा, उसकी पेयरिंग कर देगा। जब पेयरिंग हो जाती है तो वो क्या कहलाते हैं, डायामैग्नेटिक। अगर पेयरिंग नहीं होती तो दूसरे क्या कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक। सो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड इट फॉर्म डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस, बट इन द absence of strong field ligand means in the presence of weak field it form paramagnetic complexes, and this depend upon the filling of 4th and 5th electron, either it filled in the T2g orbital or Eg orbital. अगर मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो क्या करेगा, उसकी पेयरिंग कर देगा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन T2g में चला जाएगा। बट अगर वीक फील्ड होगा तो वो कहाँ चला जाएगा, Eg ऑर्बिटल में चला जाएगा।